Hello students, today we will learn about root system. So आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. So what is root? First of all, so root is underground descending part. What is the meaning of descending? Descending means goes downwards. Okay. Descending part of the plant which develop from the radical. कि जो किससे अराइज होती है? रेडिकल से अराइज होती है. So radical is the region from which root is developed. Clear? Now we will take its general characteristics. So first characteristic of root is underground developed from radical. Clear? Next point is non-green, somewhat of brownish color. Don't have node and internodal region. So इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता? नोड्स एंड इंटरनोडल रीजन प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. Its lateral branches developed from the pericycle. कि जो लेटरल ब्रांचेस हैं रूट की वो किससे डेवलप होती हैं? पेरिसाइकल से. सो पेरिसाइकल इज द रीजन विच इज जस्ट बिहाइंड द एंडोडर्मिस. फिफ्थ पॉइंट इज रूट कैप. दिस इज वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट. रूट कैप इज डेवलप्ड विच इज आल्सो नोन एज क्लिक्टरा, जिसको हम क्लिक्टरा भी बोलते हैं. ठीक है. सो क्लिक्टरा का मेन फंक्शन क्या है? रूट को प्रोटेक्ट करना. दिस थिंग वी विल डू लेटर इन डिटेल. रूट्स आर positively geotropic and positively hydrotropic. कि जो रूट्स हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोट्रोपिक? जियोट्रोपिक मींस दे गोज टुवर्ड्स द सॉइल. ओके. एंड हाइड्रोट्रोपिक मींस वो जहां पे पानी है उस तरफ जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर नेगेटिवली फोटोट्रोपिक. What is the meaning of phototropic? They do not like light. Next characteristic of the root is vascular bundles are radial condition. What is the meaning of radial? Radial means xylem and phloem are present at different radii. कि दोनों different radii पे present होते हैं. Next point is xylem is in exarch condition. So what is exarch condition? Exarch means metaxylem is present towards the peak and protoxylem present towards the cortex region. ठीक है. कि जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होता है कोर्टेक्स रीजन की ओर, और जो मेटाजाइलम है वो पित्त की ओर होता है. सो दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सार्क कंडीशन. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज very prominent point, root hairs are present. So these are the general characteristics of the root. Next we will do root in detail. We are going to start with this thing, root system. So what is root system? Root system mainly consists main tap root, which is also known as primary root, and its lateral branches. They are also known as secondary and tertiary roots. So all these are contained in root system. Clear? Now we will do types of roots. कि जो roots हैं वो कितने types की होती हैं? So roots are of two types. First one is tap root and second type is adventitious type of root. Tap root is arise from रेडिकल पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो. कि जो रेडिकल पोर्शन है एम्ब्रियो का उससे टैप रूट बनती है. ठीक है. बट एडवेंटिटियस रूट इज अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल. कि ये कैसे बनती है? रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से, लाइक एनी सब पार्ट ऑफ द रेडिकल और स्टेम, नोडल रीजन एक्सेट्रा. ठीक है. ओके. सो हमने ये टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट्स हमने पहले भी एक वीडियो में कर लिया. सो यू कैन चेक दैट वीडियो. I am adding that description in the link. So next we are going to start tap root.
इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डिवेल्प फ्रॉम द रेडिकल रीजन. ओके, प्राइमरी रूट इज प्रेजेंट which is also known as tap root. So this is the main root which goes downward. So this is the tap root or primary root. This is geotropic root. Then later branches are arise from the tap root. कि इसमें से later branches निकलती हैं. As you see, these later branches are not going downward, so these are agiotropic type of the roots. इसको हम एजियोट्रोपिक रूट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये नीचे नहीं जा रही, साइड को जा रही है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. क्लियर? नेक्स्ट इज दीज लेटरल रूट्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी रूट्स. इसको हम सेकेंडरी रूट्स भी बोल देते हैं क्योंकि ये किससे राइज हुई है? प्राइमरी रूट से. क्लियर? देन दीज सेकेंडरी रूट्स फर्दर डिवाइड इनटू ब्रांचेस व्हिच आर नोन एज टर्शियरी रूट्स. नेक्स्ट जो ब्रांचेस बनी है इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी रूट्स. सो फाइनली एट द टिप ऑफ टर्शियरी रूट्स रूटलेट्स आर प्रेजेंट. सो व्हाट आर रूटलेट्स? रूटलेट्स आर द फाइनल ब्रांचिंग ऑफ द रूट्स. नाउ वी विल टेक एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दीज रूट्स आर अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल. सो ये किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती है अदर देन दी रेडिकल पोर्शन. सो ये किसी भी पार्ट से राइज हो सकती है लाइक स्टेम, सब पार्ट ऑफ द रेडिकल, नोडल रीजन ऑफ द स्टेम. नेक्स्ट इज दे कैन बी अंडरग्राउंड और अबव द ग्राउंड. नेक्स्ट इज दे कैन बी ग्रीन और नॉन ग्रीन. ग्रीन भी हो सकती है और नॉन ग्रीन भी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे डू नॉट बियर रूट कैप. इसमें रूट कैप प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. सो रूट कैप इज नॉट प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ रूट एंड आल्सो दे डोंट हैव रूट हेयर्स. इसमें रूट हेयर्स भी प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है. सो रूट हेयर्स एंड रूट कैप आर नॉट प्रेजेंट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज दे ऑलवेज अराइज इन क्लस्टर. कि हमेशा वो क्लस्टर में ही ग्रो करती हैं. क्लियर है? और दे आर सरफेस फीडर. कि वो सरफेस के ऊपर ऊपर ही रहती हैं. सो मेन इसका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट व्हेन प्राइमरी रूट इज नॉट फुली डिवेल्प्ड. क्लियर है? सो मेनली ये मोनोकोट्स में प्रेजेंट होती है ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. सो द नेक्स्ट थिंग वी विल डू इज फंक्शंस ऑफ द रूट. कि जो रूट्स हैं उनके फंक्शन क्या है. ठीक है. सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द रूट इज anchorage. So first point of the root is anchorage, means it anchor the main plant. क्लियर? कि जो प्लांट है उसको उसकी जगह पे बना के रखती है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज एंकरेज. नेक्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन, मीन्स रूट एब्जॉर्ब water and minerals from the soil. Clear? Next point is binding to soil particles. कि soil particles को जोड़ के रखती है. So these three are the primary function of the roots. Now we will do secondary function of the roots. Clear? So secondary function is storage. So it store reserve food material, means mainly जो root में reserve food material store होता है. ठीक है. Like carrot and radish. Next is for respiration. So roots also serve as respiratory purpose in some plants. Next is aeration, means it provides air, such in mangrove type of plants. Next point is reproduction. Example of reproduction is sweet potato. Next point is photosynthesis, such as potassium and Tinospora. Along with these, roots are also used for nitrogen fixation, such as in pea plant. Okay.
एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट, कि होस्ट से कुछ प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, सच एज कैस्कटा। क्लियर? एंड लास्ट इज इट हेल्प्स टू क्लाइंब अपवर्ड, कि कुछ प्लांट्स में ये रूट्स क्या हेल्प करते हैं, क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, सच एज इन पोथोस विच इज आल्सो नोन एज मनी प्लांट, कि उसकी जो रूट्स हैं वो किस में हेल्प करती हैं, क्लाइंबिंग। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स। नाउ वी विल एक्सप्लेन सम स्पेशल केस ऑफ रूट्स। सो सच प्लांट्स इन विच रूट्स आर एब्सेंट, सो रूटलेस प्लांट्स, जिसमें रूट्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है, वो प्लांट्स। So examples are Utricularia, Wolffia and Cascada. So these are the example of rootless plants. Clear? Next is plantless root, means only roots are present. So in these examples are Podestimum and Rafflesia. In some plants, roots are of green color, such as they do photosynthesis. So green roots are present in Tinospora, Podestimum. So these are some special case of roots. Okay. Now next thing we will do is parts of the roots. So now we are going to start parts of the roots. So first is root cap, second is growing region, third is zone of elongation, fourth is root hair zone, zone of maturation. These are the parts of the roots. So one by one we will explain each and every part. So this is the general structure of the root. So first of all we are starting with the tip. So this region is known as root cap. So ये सबसे पहले क्या है, root cap है, this thing at the apex. Okay. Next is this region. This is the region of growth. So this is the growing region or growth region. Clear? So this is a region which is known as root hair zone, जहां पे root hairs present है. And the last part is zone of maturation. So one by one we will explain each and every part. So starting with the first part, root cap. Root cap is also known as calyptra, and this is present at the apex region of the root. Apex means at the tip. कहाँ पे present है? Tip पे present है. ठीक है? Next is the cells of root. कि जो root cap के cell हैं, वो सारे किस टाइप के होते हैं? Parenchymatous type of cells. Clear? So the main function of root cap is protection. So the main function is protection. So protection is provided to the growing root tip. Okay, the cells of root cap mainly consist starch. So इसका reserve food material क्या होता है? Mainly starch होता है. ठीक है? The cells of the root cap. So these are the general points of the root cap. Now we are going to start with the next point. So this region is present after the root cap. ठीक है? So इसके जो सेल होते हैं mainly वो क्या करते हैं? Divide करते हैं. So mainly the cells of growing region divide continuously to add new cells. So this is the region where development is occurred, जहां पे रूट की डेवलपमेंट होती है. ठीक है? So this region is 1 millimeter in length, present after the root cap. So this is subterminal पोजीशन पे है, मल्टी सेल्यूलर है, और सेल हमेशा क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, डिवाइड होते हैं. ठीक है? So the next point is cells. So mainly the growing region cells are thin walled, isodiametric,
एंड दे डोंट हैव वैक्यूल्स, उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। सो उनमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द cells of the growing region. Clear? Mainly there are two types of cell divided in growing region. Okay, so first type is calyptrogen. So these type of cells are generally divided towards the root cap. ठीक है, so क्योंकि root cap को calyptra बोलते हैं इसलिए calyptrogen वो सेल है जो किस तरफ डिवाइड होते हैं, रूट कैप की ओर। ठीक है, सेकंड इज हिस्टोजन। सो दीज आर डिवाइडेड टुवर्ड्स द बेस, ऊपर की ओर। ठीक है, सो दूसरी तरफ डिवाइड होते हैं, उसको हम हिस्टोजेंस बोलते हैं। क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल्स डिवाइडेड इन ग्रोइंग रीजन। सो नेक्स्ट इज द जोन ऑफ इलोंगेशन। सो दिस रीजन इज प्रेजेंट आफ्टर द मेरिस्टेमेटिक रीजन। ओके, सो दिस जोन इज 4 to 8 millimeter in length and present after the मेरिस्टेमेटिक रीजन। सो अब इस रीजन में जो सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल, क्योंकि उनमें वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है इसलिए सेल्स डिवाइड रैपिडली, सेल डिवीजन अकर। ओके, सो दिस रीजन मेनली प्रोवाइड लेंथ टू द रूट, इसलिए इसको जोन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं क्योंकि मेनली दिस थिंग इज प्रोवाइड द लेंथ टू द रूट। सो आफ्टर दिस द पावर ऑफ सेल डिवीजन स्टॉप्स। So the cell of zone of elongation only helps in absorption of water and minerals. So उसका मेनली काम क्या रह जाता है, एब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, now next is root hair zone. As it is clear from the name, root hair zone means root hairs are present. Root hairs are present in this zone, so this is known as the root hair zone. Clear? So this is present after the zone of elongation, and this region is 1 to 6 centimeter in length. So इसकी लेंथ कितनी है, 1 to 6 centimeter है। And this region is also known as Pilifer's region. So mainly the function of this zone is absorption of water. This is a temporary zone of the root. So after maturity, the root hairs of this zone shrivel. कि जब मेच्योरिटी आ जाती है तो इसकी जो रूट हेयर्स हैं वो क्या कर जाती है, श्रिवल कर जाती हैं। ठीक है, एंड दे विल बिकम नॉन फंक्शनल, और क्या हो जाती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती है। सो नाउ सेल्स ऑफ रूट हेयर जोन, इसके जो सेल है वो यूनिसेलुलर होते हैं, एफिमिलर टाइप के होते हैं, मींस लिव ओनली वंस, यूनिसेलुलर एफिमिलर टाइप। रूट कैप इज आल्सो एब्सेंट सच एज इन हाइड्रोफाइट्स, कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं उसमें रूट कैप्स भी क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, सच एज आइसोर्निया। नाउ नेक्स्ट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन। सो दिस जोन इज प्रेजेंट आफ्टर द रूट हेयर जोन। ओके, सो नाउ सेल्स ऑफ दिस जोन्स आर थिक वॉल्ड। किसके सेल क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। थिक वॉल्ड होते हैं इसलिए ये एब्जॉर्प्शन नहीं करते। ठीक है ना, सो एब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन दिस रीजन एंड लेटरल रूट्स आर अराइज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ दिस रीजन। एंड द लास्ट पॉइंट इज सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर हियर, कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी किसमें होती है, जोन ऑफ मैच्योरेशन में होती है। ठीक है, सो दीज आर द different parts of the root. Clear? So this is all about today. Next thing we will do is origin of the lateral roots. That thing we will do in our next video. Thank you.